सो कल डिस्कस किया था डाइलेक्ट्रिक एंड देयर पोलराइजेशन. दिस इज आवर टॉपिक, डाइलेक्ट्रिक एंड इट्स पोलराइजेशन. डाइलेक्ट्रिक एंड इट्स पोलराइजेशन. डाइलेक्ट्रिक एंड इट्स पोलराइजेशन. कल थोड़ा बहुत डिस्कस किया था एंड यू कंटिन्यू फर्दर. क्लियर? किसी को कोई डाउट हो तो बोलो बेटे. कल वाले टॉपिक से किसी को कोई डाउट है so you may ask any question regarding previous class. Any question? इतना भी अच्छा नहीं पढ़ाता मैं, किसी को कोई डाउट ना हो रहा. चलो कोई नहीं. So what your dielectric, if there is dielectric, if E is equal to 0, if E is equal to 0, then net dipole moment of dielectric will be 0 and that will be irrespective of molecule. Molecule may be polar or non-polar, but if there is no electric field, your dipole moment of the dielectric will be 0. यह मैंने कल प्रूफ कर दिया था, डिस्कस कर दिया था. क्लियर? द इलेक्ट्रिक पोलर मोलिक्यूल से मिलकर बना है या नॉन पोलर से बना है? पोलर मोलिक्यूल से बना है या नॉन पोलर से? If there is no electric field, the dipole moment of the dielectric will always remains 0. Always remains 0. Is that okay? Now we will convert a dielectric having 0 dipole moment to a dielectric having a net dipole moment. Clear? Today we study dielectric. Dielectric having 0 P2, dielectric having non 0 P, यानी कि डाइलेक्ट्रिक है जिसका नेट P 0 है, उसको हमको चेंज करना है किसमें? डाइलेक्ट्रिक हैविंग नॉन 0 P. तो क्या प्रोसीजर है, कैसे करेंगे? क्लियर? ये 0 कब होगा? जब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? 0. क्लियर? इफ देयर इज नो इलेक्ट्रिक फील्ड देन डाइलेक्ट्रिक हैव नेट 0 dipole moment. Net 0 dipole moment. Clear? So we will study or we will convert a dielectric having 0 P to a dielectric having non-0 P. Clear? And this process is called the polarization process or polarizing process. Clear? तो होगा क्या बात? पहले दो केस करेंगे. पहले हम करेंगे पोलर वाला, नॉन पोलर वाला केस करेंगे. नॉन पोलर. If there is a non-polar dielectric, non-polar molecule वाला, non-polar molecule. So there is a dielectric, and it is made up by non-polar molecule. हम एक डाइलेक्ट्रिक लेंगे, वो non-polar molecule से बना है. So this is your dielectric and this is made up by non-polar molecule. Clear? Non-polar molecule and E is equal to 0. So E is equal to 0, then P net of dipole will be 0. If E is equal to 0, then P net of the dipole will be 0. Now we will apply the external electric field. We will apply a external electric. Means there is electric field. There is a electric field. And we are putting this dielectric in that field. Clear? Means your E is non-zero. E is non-zero. Then your dielectric is in the electric field. Clear? Dielectric is in the electric field. तो ये हटा देते हैं हम यहाँ से लाइन. क्लियर? अब देखो क्या होगा. डाइलेक्ट्रिक, जब डाइलेक्ट्रिक नहीं था, when there is no electric field, then center of positive charge is coinciding with the center of negative charge. Center of positive charge is coinciding with center of negative charge. If there is no electric field, so मान लो this is your
molecule. This is your molecule and this is non-polar, means center of positive and center of negative charge is coinciding. So what if there is a molecule, clear, and this is the non-polar, clear, and now you are applying electric field, तो होगा क्या बाबू, अब this is a non-polar molecule, means this molecule is made up by पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज. ये मॉलिक्यूल है जिसके पास पॉजिटिव चार्ज भी होगा और नेगेटिव चार्ज होगा, और पॉजिटिव चार्ज विल बी इन द न्यूक्लियस एंड नेगेटिव चार्ज विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन द ऑर्बिट ना, इन द ऑर्बिट, और यू मेजर दैट इलेक्ट्रॉन्स प्लस दे आर डिस्ट्रीब्यूटेड एट इलेक्ट्रॉन. ये पूरा आ रहा है इसमें विजुअल है क्या मतलब है, क्लियर. यानी कि ये मॉलिक्यूल है नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, तो इसका पॉजिटिव और नेगेटिव क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज का सेंटर और नेगेटिव चार्ज का सेंटर क्या होगा, एक ही पॉइंट होगा, क्लियर. और पॉजिटिव चार्ज किसमें होता है, वो न्यूक्लियस में होता है, और नेगेटिव चार्ज होता है वो ऑर्बिट में होता है या एज इलेक्ट्रॉन क्लाउड होता है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड होता है. इसका मतलब ये है कि अगर ये एटम है तो बाबू न्यूक्लियस में क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा, क्लियर, और इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे, इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, ऑर्बिट्स में डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे, यहाँ, क्लियर. नाउ यू आर अप्लाइंग इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जब इधर अप्लाई करोगे, so there are two charges in the electric field. One is positive charge which is inside the nucleus, and other are the electrons. Now, electrons are the charged particle, and protons are the charged particle, and protons are in the nucleus, and electrons are in the orbit or are as cloud. Now, electrons are as cloud or are in the orbit. So, if you are putting an atom, you are putting an atom in an electric field, and we are assuming that our atom is non-polar. Our molecule is non-polar. So this atom or this molecule is non-polar, and we are putting this non-polar molecule in a electric field. So what? And this atom or this molecule is made up by two charged particles, positive charged particles which are inside the nucleus, and negatively charged particles are in the orbit or they are distributed as electron cloud. कुछ भी मान सकते हैं. So they are in the electric field. So what you know, if there is electric field and there is a charge in the electric field, then a force will act on that charge, and that will be equal to Q E. And if your charge is positive, then force and E will be in the same direction, and if charge is negative, then force and E will be in opposite direction. Na? Clear? If you are putting a charge in the electric field, and if charge is positive, then force on the charge will be in the direction of electric field, and if charge is negative, then force on charge will be opposite to the electric field. So there are two charges. This atom or these molecules have two charges, and they are in the electric field. Clear? So the force will act on the two now. So our positive charge होगा तो किधर force लगेगा बाबू, इधर, और negative charge होगा तो किधर लगेगा, इधर. So you know electrons are the negatively charged particles. So a force will act on the electrons, and these electrons will try to move in this direction now. So सारे इलेक्ट्रॉन कहाँ आएंगे अब, इधर. इसका मतलब कि इलेक्ट्रिक फील्ड में रखोगे तो सारे इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, इधर आ जाएंगे. इसका मतलब क्या है, here population of electron will increase, or cloud density of electron will increase ना, cloud density of electron will increase. तो यहाँ क्या कर सकते हो कि यहाँ बोल सकते हो population of electron will be increased in this side, or electron cloud density will be increased in this side now, and here electron cloud density will decrease or population of electron will decrease. Think about positive charge. Think about positive charge. Positive charge is in the nucleus, and you know charge of proton का मास कितना होता है बाबू, 1.67 into 10 to the power minus 27. इलेक्ट्रॉन का मास होता है 9.11 into 10 to the power minus of 31 kg and kg. Means proton is very heavy comparison to the electron. Same force is acting on the electron and same force is acting on the proton. तो सबसे ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट और सबसे ज़्यादा डिस्टर्बेंस किसमें होगा, जिसका मास कम होगा. इलेक्ट्रॉन का मास क्या है बाबू, बहुत कम है, तो इलेक्ट्रॉन इजीली इधर चला जाएगा, लेकिन वही फोर्स प्रोटॉन पर अप्लाई करेगा तो क्या होगा, प्रोटॉन नहीं मोशन करेगा. एंड प्रोटॉन इज इन द न्यूक्लियस, प्रोटॉन इज इन द न्यूक्लियस, प्रोटॉन इज इन द न्यूक्लियस, एंड न्यूक्लियस कंटेन्स इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड द न्यूट्रॉन एंड देयर हेवीली चार्ज पार्टिकल. मतलब कि सेम फोर्स इस न्यूक्लियस को डिस्टर्ब नहीं कर सकता. दिस फोर्स ओनली डिस्टर्ब द इलेक्ट्रॉन क्लाउड और द पॉपुलेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. क्लियर? यानी देयर विल बी नो एनी चेंज ऑफ nucleus due to this electric field. Only your electron cloud or electron population will change. इधर ओके. तो हो गया क्या कि किसी मॉलिक्यूल, and this is non-polar one, इसको इलेक्ट्रिक फील्ड में रखोगे तो इधर साइड क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का पॉपुलेशन क्या होगा, ज्यादा होगा, इधर कम हो जाएगा.
but this positive charge still remains at its original position. Is that okay? Got my point? यहाँ तक क्लियर? किसी को डाउट अभी तक? बोलो, किसी को क्लियर हुआ कि नहीं? अरे थंब को अप करो, अगर मैं पूछ रहा हूं तो तुरंत थंब का बीच में आप करते चलो यार, बार बार मैं नहीं पूछने वाला। सबको गुड, लिखो जल्दी लिखो। So, क्या बाबू, E 0 है, your E is 0 and this is your non-polar atom, non-polar एटम लेके कर लेते हैं मॉलिक्यूल बाद में करना, non-polar atom। तो होगा क्या बेटे, E is 0 और non-polar atom, तो क्या होगा कि इधर पे क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा और इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, चारों तरफ होंगे। इससे मतलब क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन का सेंटर यहीं पे होगा और पॉजिटिव यानी नेगेटिव चार्ज का सेंटर यही होगा, पॉजिटिव चार्ज का सेंटर ये होगा। दैट्स व्हाई योर p एटम बिकम 0। नाउ देयर इज इलेक्ट्रिक फील्ड, मींस इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन जीरो, दिस इज योर इलेक्ट्रिक फील्ड, this is electric field and now this atom is in the electric field, so this is your nucleus। अब होगा क्या होगा, इलेक्ट्रॉन क्लाउड पॉपुलेशन क्या होगा, इधर इंक्रीज करेगा इधर डिक्रीज, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन थोड़ा सा ज्यादा दिखा दो, इधर थोड़ा सा कम दिखाओ, तो होगा क्या, इसका मतलब क्या होगा कि इनिशियल सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज वाज कोइंसाइडिंग विद सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज ना, दैट्स योर p 0, बट here your center of negative charge you shift towards this area ना, इधर आ जाएगा ना सेंटर। मान लो कि एक मास यहाँ, मान लो 5 kg मास है, यहाँ 1 kg मास है, सेंटर ऑफ मास किधर होगा, 5 kg वाले के पास होता है ना, क्योंकि समेशन mi/ri मस्ट इक्वल टू 0, ये होता है ना, क्लियर? ये पढ़े हो सेंटर ऑफ मास में, मास मोमेंट भला हो तुम्हारा सुना पूछा, सेंटर ऑफ मास जैसे होता क्या, ये बैठते हो तुम लोग, देखो ये झूले पे बैठते हो तुम लोग, बीच में झूला लगा ऐसे लगा दो, तो दोनों का मास क्या करेगा, अगर मान लो ये ऐसा कुछ है, यानी झूले पे हम लोग बैठते हैं ना, जो ये अरे आजकल पता नहीं यार दिल्ली में केजरीवाल खूब लगाया हुआ, पार्क वर्क में जाओगे तो यहाँ भी है, तो इधर भी कोई बैठने का, मान लो इधर भी 10 kg का बैठ गया और इधर भी 10 kg का बैठ गया और ये बिल्कुल सेंटर पे है, क्लियर? तो क्या होगा, बैलेंस कर जाएगा। लेकिन मान लो इधर से ये 15 kg बैठ गया, तो क्या होगा, इधर ये झुक जाएगा, इधर झुक जाएगा, तो हम क्या करेंगे, अगर इसको इधर शिफ्ट कर देंगे क्या होगा, बैलेंस हो जाएगा। टॉर्क बोल सकते हो, F tau इक्वल टू F r, यानी क्या करो, टॉर्क दोनों का सेम होना चाहिए इक्विलिब्रियम के लिए, तो इफ F इज इंक्रीजिंग योर r शुड डिक्रीज ना, देन देयर प्रोडक्ट विल बी कांस्टेंट ना, r इक्वल, इसका मतलब क्या है कि इधर पॉपुलेशन बढ़ गया, तो सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज विल शिफ्ट टुवर्ड दिस साइड ना, शिफ्ट हो जाएगा ना, क्लियर? सो व्हाट होगा क्या, अभी इनिशियली इलेक्ट्रॉन का पॉपुलेशन यूनिफॉर्म था, तो सेंटर यहाँ पर था उसका और पॉजिटिव का सेंटर यहाँ पर, तो दे आर कोइंसाइडिंग, दैट्स व्हाई p एटम गोस टू 0। Here population of electron is larger, here population of electron is smaller, so what your center of negative charge will shift from here to here ना, यानी इधर शिफ्ट हो जाएगा, मान लो यहाँ के सेंटर ऑफ नेगेटिव था और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है, सो क्या देयर आर टू इक्वल एंड कोई चार्जेस एट a finite separation, so they are acting as a dipole ना, तो इसका डाइपोल मोमेंट क्या होगा, नॉन जीरो होगा। अब इसका p एटम क्या होगा बाबू, नॉन जीरो होगा। आई बात समझ, means if there is a non-polar molecule, then if there is non-electric field, then dipole moment of that non-polar molecule will be 0. But if you are putting that non-polar molecule in an electric field, then center of positive charge and center of negative charge will shift. Clear? There will be a gap between the two, and that's why the atom will have net dipole moment. कोई दिक्कत, ये फिगर क्लियर हुआ कि नहीं? Is this scenario clear to you? सबको क्लियर हुआ? हमको आप करो बाबू जल्दी जल्दी, अगर क्लियर होते चलता तो बोलते चलो। क्लियर सबको? ज्योति, अभिषेक, राहुल, अंकित, सबको क्लियर है? गुड। तो होगा क्या बाबू, अब अपने आप में कंसेप्ट पे आ जाता है। क्लियर? अब यहाँ से हम क्या करेंगे, ये लिख लो जल्दी लिख लो, फिर मैं कराऊंगा आगे, जल्दी लिख लो।
तो अगर इसका फिगर बनाते हो, सुनो इसका फिगर बनाएंगे हम, तो अब क्या होगा, अगर इफ ई इक्वल टू जीरो, ई इक्वल टू जीरो, तो पोलर मॉलिक्यूल के फिगर कैसे बनाएंगे, ऐसे बनाएंगे। एंड इफ ई इक्वल टू नॉन जीरो, तो पोलर मॉलिक्यूल फिगर कैसे बन जाएगा, अब ऐसे दिखाएंगे शिफ्ट करके, ऐसे या ऐसे, यही होता है नॉन पोलर का, यानी कि अब क्या इसका डाइपोल मोमेंट आ गया, तो ई इक्वल टू नॉन जीरो, तो ये होगा मॉलिक्यूल का फिगर, और नहीं है तो कोई दिक्कत। तो ये क्या आप डालते हैं, इसका पी नेट क्या है बाबू, जीरो है, इसका पी नेट नॉन जीरो, क्लियर। यही कंसेप्ट हम डायरेक्टली यूज करने वाले, चलो करो। सो इफ दिस इज डाइलेक्ट्रिक एंड व्हेन ई जीरो ओवर हियर, तो क्या होगा, सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज, वी आर डीलिंग आउट नॉन पोलर, कीप दिस इन माइंड, नॉन पोलर molecule means your dielectric is made up by non-polar molecule. Yet, so clear. Now, if your electric field is non-zero, so electric non-zero किधर हो गया, नेगेटिव प्लस ऐसे हो जाएगा ना, बोलो। If electric field is in this direction, if electric field is in this direction, is that okay? This is non-zero. Now, clear? Clear? इसका मतलब क्या होगा, इसका P नेट भी क्या होगा, डाइलेक्ट्रिक का, यहाँ इलेक्ट्रिक की जरूरत है, इसलिए P नेट डाइलेक्ट्रिक का भी क्या था, जीरो। इसके बाद हमने क्या कर दिया, पोलराइज कर दिया, क्या कर दिया, पोलराइज कर दिया, इसमें डाइपोल मोमेंट आ गया। क्लियर, क्लियर। अब देखो, सो पी नेट ऑन विच फैक्टर, ऑन विच फैक्टर पी नेट विल डिपेंड, ऑन विच फैक्टर पी नेट विल डिपेंड। सबसे पहले मान लो बाबू ये एटम है तुम्हारा, और इधर पॉजिटिव चार्ज है और इलेक्ट्रॉन्स इधर है, E is equal to 0. Clear? Now we are putting this atom in electric field. So E is equal to non-zero and then this zero. So what? Population towards this side will increase ना? Clear? और इधर पर डिक्रीज कर रहा है। तो होगा क्या होगा? अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करोगे तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स पे फोर्स इधर लगेंगे, इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होगा, और प्रोटॉन पे फोर्स लगेगा लेकिन उसके हैवी मास को शिफ्ट नहीं करेगा। इसका मतलब ये है कि जब इलेक्ट्रॉन इधर आ गया तो इलेक्ट्रॉन पे ये दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइंग फोर्स ऑन द इलेक्ट्रॉन, दैट्स व्हाई इलेक्ट्रॉन इज मूविंग इन द टुवर्ड दिस साइड ना, योर इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइंग फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन, दैट्स व्हाई योर इलेक्ट्रॉन इज मूविंग टुवर्ड दिस साइड ना। तो अब टुवर्ड दिस साइड मोशन में ऐसा थोड़ी होता है कि न्यूक्लियर यानी कि इलेक्ट्रॉन कहां तक मोशन करेगा, इलेक्ट्रॉन को फोर्स आ रहा है, इसका मतलब थोड़ी इलेक्ट्रॉन क्या होगा, यहां से सारा इलेक्ट्रॉन इधर नहीं आएगा, सबसे पहली बात। और दूसरा बात कि यहां से क्या होगा, एटम के शेप में भी चले जाएंगे थोड़ा सा, कैसे, क्योंकि मान लो यूनिफॉर्मिटी डिस्ट्रीब्यूशन को मान लो ये स्फेरिकल एटम है, अब क्या होगा इधर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी, इधर कम होगा, तो शेप भी थोड़ा सा चेंज होगा ना, हो सकता है तुम्हारा मॉलिक्यूल क्या होगा, स्ट्रेच हो जाए, ऐसे एटम बन जाए, स्ट्रेच हो जाए, उसमें स्ट्रेच हो जाए क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्लाउड क्या हो रहा है इधर ज्यादा हो रहा है, तो उसमें क्या होगा, उसका शेप और साइज नहीं चेंज हो जाएगा ना, स्ट्रेचिंग होगा, उसमें क्या होगा, स्ट्रेचिंग होगा, एटम में क्या होगा, स्ट्रेचिंग होगा। अब वो स्ट्रेचिंग किस पे डिपेंड करता है, ज्यादा पॉपुलेशन आएंगे इधर, ज्यादा इलेक्ट्रॉन को ज्यादा स्ट्रेच करेगा, कम आएंगे तो कम होगा। इसका मतलब ये है कि ये इलेक्ट्रॉन्स है, इस पे तुम्हारा इलेक्ट्रिक फोर्स अप्लाई करेगा, और इधर दैट्स व्हाई इलेक्ट्रॉन इज मूविंग इन दिस डायरेक्शन, क्लियर। एंड इलेक्ट्रॉन ये नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल, सो इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेगा, ये एक्सटर्नल फील्ड, तो इधर इलेक्ट्रॉन मोशन में आएगा। एट द सेम टाइम योर प्रोटॉन इज आल्सो अप्लाइंग फोर्स ना, so your proton is pulling this electron in this direction and your electric field is pulling electron in this direction, so इसका जो शेप होगा वो इक्विलिब्रियम में कब आएगा, when the two force becomes equal, force due to external electric field and force due to nucleus becomes equal, then shape of the atom remains fixed, यानी कि स्ट्रेचिंग कब तक होगा, जब तक दोनों फोर्स इक्वल है। आ रही है बात समझ, कोई दिक्कत,
अच्छा एक और चीज ये भी है, उस पर डिपेंड करेगा। और चीजें उसका बात है वो यानी कि फैक्टर क्या है, फैक्टर क्या है, इलेक्ट्रिक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड पे डिपेंड करेगा। पी नेट किस पे डिपेंड करेगा, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड पे। जितना ज्यादा एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड उतना ज्यादा क्या होगा, पी होगा, पहला। दूसरा चीज है थर्मल, थर्मल क्या होगा, थर्मल। थर्मल ये है बाबू कि थर्मल ड्यू टू थर्मल द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एटम इज रैंडम ना, रैंडम ना। अब थर्मल मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड तुमने दिया, ये डाइपोल है, इलेक्ट्रिक फील्ड तुमने दे दिया इधर, ध्यान से समझना बहुत इलेक्ट्रिक फील्ड, तो डाइपोल क्या होगा, ऐसे होगा, ऐसे होगा, ऐसे होगा, ऐसे होगा, ऐसे होगा, क्लियर। अब क्या करो, नाउ स्टार्ट गिविंग टेम्परेचर, हीट, स्टार्ट गिविंग हीट, इसको हीट दोगे, देन एनर्जी, थर्मल एनर्जी ऑफ दिस एटम विल इंक्रीज ना, क्लियर। देन देयर अलाइनमेंट विल चेंज ना, अगर एनर्जी तो क्या होगा, इनका वाइब्रेशन चेंज होगा, इनका अलाइनमेंट चेंज होगा, तो इनका डिस्ट्रीब्यूशन ही क्या हो जाएगा, रैंडम होगा। हो सकता है कि कुछ मॉलिक्यूल इधर हो, बाकी के कुछ क्या हो, ऐसे हो, कुछ भी हो सकता है ना यार। आगे बात समझ, मींस इफ देयर इज non-polar molecule in the electric field, that non-polar molecule have net dipole moment in the external electric field, but value of that dipole moment will depend upon the external electric field, how much external electric field you are applying. Also that will depends upon the thermal energy of the atom ना, अगर कम एनर्जी होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड इजीली अप्लाई करोगे एंड दे विल अलाइन इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर ज्यादा थर्मल एनर्जी होगा तो उनमें रैंडमनेस क्या होगा, ज्यादा होगा, अलाइनमेंट क्या होगा, उल्टा सीधा होगा, इधर उधर होगा, तब भी क्या होगा, पी रेट पे इफेक्ट करेगा ना। मान लो कि अगर ऐसा ना इलेक्ट्रिक है और सारे ऐसे हैं, तो इसका डाइपोल मोमेंट क्या होगा बाबू, कुछ होगा मान लो, और दूसरा डाइलेक्ट्रिक है, इसका ऐसा है, मान लो कि कुछ ऐसे हैं और कुछ ऐसे हैं, this one will have net dipole moment, this one will have net dipole moment, and also this one will have net dipole moment, but value of this one will be smaller than this one, क्योंकि इसका अलाइनमेंट क्या है, कुछ एटम का अलाइनमेंट क्या है, अलग भी है, इधर भी है, इधर भी है, इधर भी है, तो क्या करेंगे, थोड़ा सा इफेक्ट को क्या करेंगे, कम करेंगे। Means your P net will depends upon external electric field and also will depends upon the thermal energy of the dielectrics. Got my point? Got my point? अगर टेम्परेचर इंक्रीज करोगे रेंडमनेस बढ़ेगा, रेंडमनेस बढ़ेगा तो अलाइनमेंट इधर 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 कहीं भी जा सकता है, क्लियर। और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड टॉर्क अप्लाई करके क्या करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड विल ट्राई टू अलाइन द डाइपोल इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। When you are putting a dipole in the external electric field, then the purpose of electric field is to align the dipole in the direction of electric field। यानी कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगा, चाहेगा कि डाइपोल क्या हो, हमेशा इधर आए, इधर आए। लेकिन थर्मल एनर्जी करोगे क्या होगा, थर्मल एनर्जी विल इंक्रीज द अलाइनमेंट ना, इंक्रीज द रैंडमनेस, यानी थर्मल एनर्जी अलाइनमेंट को चेंज कर रहा है, और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या कर रहा है, दैट इज ट्राइंग टू अलाइन द डाइपोल इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड चाह रहा है कि डाइपोल हमेशा ऐसे रहे, हमेशा इस डायरेक्शन में, पी हमेशा इधर है, और थर्मल एनर्जी क्या करेगा, उसके रैंडमनेस को क्या करेगा, बढ़ाएगा, तो मॉलिक्यूल हो सकता है इधर भी हो जाए, मॉलिक्यूल हो सकता है इधर भी हो जाए अलाइनमेंट, यानी कि थर्मल एनर्जी इज डिस्टर्बिंग द अलाइनमेंट एंड योर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इज ट्राइंग टू अलाइन द डाइपोल इन द इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी क्या होगा, इसका मतलब ये है कि ये डाइपोल है बाबू, तो इस पे दो फोर्स लगेंगे, एक तो तुम्हारा या दो एनर्जी, एक तो तुम्हारा पोटेंशियल एनर्जी जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर रहा है, और एक थर्मल एनर्जी जो कि तुम्हारा ड्यू टू टेम्परेचर है। तो थर्मल एनर्जी क्या करेगा, इसके रैंडमनेस को बढ़ाएगा, चाहे कि कहीं भी अलाइनमेंट, मान लो ये चाह रहा है कि थर्मल ड्यू टू थर्मल एनर्जी ये चाह रहा है कि मैं इधर रहूं, ऐसे अलाइनमेंट हो, और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या चाहेगा बाबू कि इधर अलाइन करे, थर्मल एनर्जी चाह रहा है कि मैं इधर रखूं इसको, और इलेक्ट्रिक फील्ड चाह रहा है कि इधर रखूं, तो दोनों का जब एनर्जी सेम हो जाएगा तो क्या होगा, इक्विलिब्रियम स्टेट पे आ जाएगा और हमेशा वही बना रहेगा। बात समझ आई पूरी, क्लियर हुआ कि नहीं, थंब अप करो अगर क्लियर हुआ तो। ये देख बाबू बुक में ऐसा कुछ कहीं नहीं दे रखा, कुछ भी नहीं, खाली लैंग्वेज दे रखा है, और लैंग्वेज तुम भी पेपर में लिखोगे, समझने के लिए सब करा रहा हूं मैं। किसी को क्लियर हुआ तो थंब अप करो यार, बाकी सबको करो थोड़ा सा है, ये बहुत इंटरेस्टिंग भी, एक बात और बता देता हूँ, बहुत इंटरेस्टिंग है। कोई और करो, और कोई बाकी के बच्चे सबको थंब अप सब करो, अब थोड़ा टाइम लो लेकिन थंब अप करो।
बाकी के बचे जानवी, संध्या, स्नेहा, सोनम। गुड गुड, दिस इज वेरी बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, तुम्हें अच्छा लगेगा ये, ठीक है, अगर क्लियर हो रहा कंसेप्ट तो। इसका मतलब क्या होगा बाबू, मींस आवर पी नेट विल डिपेंड अपॉन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड आल्सो थर्मल एनर्जी ऑफ द डाइलेक्ट्रिक्स, क्लियर, यानी कि पी नेट विल डिपेंड्स अपॉन इलेक्ट्रिक फील्ड and thermal energy of the dielectric। इधर होगा, सॉरी, डाइलेक्ट्रिक dipole moment will depends upon two factor, first electric field, second thermal, you may also test the potential energy of dipole, potential energy of dipole, which is u is equal to minus of p dot e, which is equal to minus of p e cos of थीटा, यही होता है ना, माइनस आता है ना, क्लियर, एंड थर्मल एनर्जी which is the function of temperature, function of, you may also tell internal energy, function of temperature, टेम्परेचर बढ़ाएगा थर्मल एनर्जी बढ़ेगा तो रैंडमनेस बढ़ जाएगा तो डाइपोल मोमेंट कम हो जाएगा, क्लियर। सो इलेक्ट्रिक डाइपोल of the dielectric will depends upon two factor, potential energy of the dipole and thermal energy of the dielectrics, clear, thermal energy of the dielectric। So this is your dielectric and E is equal to 0, so what, center of positive charge will coincide with center of negative charge, means E is equal to 0, so P net of the dielectric is 0 because positive negative same है तो net charge 0 है, इधर ओके। now we are putting the dielectric in the electric field, so this is your dielectric and E is non-zero, so we have to prove how your P net is non-zero, कैसे होगा, देखो होगा कि ये रखोगे बाबू तो क्या होगा, पहले स्ट्रेचिंग होगा, पहले फर्स्ट योर नॉन पोलर मॉलिक्यूल विल कन्वर्ट टू पोलर मॉलिक्यूल एंड देन विल अलाइन इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, दो प्रोसीजर होगा, पहले स्ट्रेचिंग होगा, इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स का डिस्प्लेसमेंट होगा, वो डाइपोल फॉर्म करेगा पहले, उसके बाद अलाइन करेगा किधर, टुवर्ड्स इलेक्ट्रिक फील्ड बिकॉज देयर इज पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड ना, और थर्मल एनर्जी क्या करेगा, उसको अपोज करेगा, मींस थर्मल एनर्जी इज अपोजिंग द अलाइनमेंट एंड दिस वन इज forcing the dipole to align in the direction of electric field, clear, हुआ, ऐसा कुछ हो जाएगा, माइनस प्लस 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 करो, अब एक काम करता हूँ, इसको ऐसे पार्टीशन कर देता हूँ, दो पार्ट में, so look at this field, देखो एक पॉजिटिव चार्ज यहाँ है और उसके तुरंत बाद क्या है, नेगेटिव चार्ज, तो इनका नेट इफेक्ट क्या होगा, 0, फिर एक पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव, इनका नेट इफेक्ट क्या होगा, 0, फिर एक पॉजिटिव फिर नेगेटिव, इनका नेट इफेक्ट क्या होगा, 0, फिर इसका पॉजिटिव नेगेटिव, इसका नेट इफेक्ट क्या होगा, 0, इसका नेट, यानी कि अगर इस बॉक्स की बात करते हो, इस एरिया की बात करते हो, देयर पॉजिटिव चार्ज न्यूट्रलाइज्ड बाय द नेगेटिव चार्ज है, क्योंकि कि एक का पॉजिटिव चार्ज दूसरे का नेगेटिव क्या है, दे आर टुगेदर ना, यानी कि इस एरिया
positive charge is in the vicinity of negative charge, so the net effect will be 0 इस एरिया। बचेगा कितना? खाली इधर बचेगा, खाली इधर। सो दिस फिगर इज इक्विवेलेंट टू दिस फिगर। होगा क्या बाबू कि अंदर में कोई रोल ही नहीं बनता इन चार्ज का, खाली क्या होगा यहाँ पर नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। यस सर, आज आपका नाइट में था। जी और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज। क्यों आ रही है बात समझ? इफ योर इलेक्ट्रिक फील्ड इज इन दिस डायरेक्शन यू हैव टू मेंशन दिस। अगर डायरेक्शन इधर होगा तो क्या होगा? इधर पॉजिटिव उधर नेगेटिव। मींस इनिशियली you if the electric field is 0 then p net or dipole is 0 because ऐसा कुछ dipole फॉर्म ही नहीं हो रहा था, कहीं फॉर्म हो रहा है। but here from this picture it is clear that there is separation of positive charge and they are equal and opposite. There is separation of positive and negative charge and they are also equal and opposite. Means these are forming a dipole ना, एक यहाँ positive charge यहाँ negative charge है और यहाँ क्या है पॉजिटिव चार्ज है एंड द गैप क्या होगा इस डाइलेक्ट्रिक का लेंथ, सो दे आर फॉर्मिंग द डाइपोल, सो देयर विल बी नेट डाइपोल मोमेंट ना। एक ये डाइपोल बनाएगा, एक ये, जितने अब ये एटम्स होंगे उतना क्या होगा डाइपोल, जितने सरफेस पे एटम होंगे उतना क्या होगा डाइपोल। इधर ओके, इज दिस पिक्चर क्लियर? अंदर वाला क्यों होगा? क्योंकि पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज क्या है सटे हुए हैं, पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज क्या हुआ सटे हुए हैं, उनका नेट इफेक्ट क्या हो जाएगा 0। कैसे? देखो मान लो यार ये इलेक्ट्रिक फील्ड रखा था तो होगा क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड रखोगे इधर क्लाउड क्या होगा ज्यादा होगा, इधर क्या होगा कम होगा। क्लियर? अब देखो अब पॉजिटिव चार्ज तो यही है ना, अब फिर दूसरे वाले का भी क्या होगा, दूसरे वाले एटम का भी इधर क्लाउड क्या होगा ज्यादा होगा। अब पॉजिटिव चार्ज क्या है, ये इसका पॉजिटिव, इसका क्लाउड क्या है पास में, तो नेट इफेक्ट क्या हो जाएगा इनका 0, दे विल न्यूट्रलाइज देयर इफेक्ट ना। बचेगा खाली यहाँ नेगेटिव और यहाँ पॉजिटिव, यानी अंदर का इंपैक्ट 0, खाली सरफेस पे चार्ज होगा यहाँ नेगेटिव और यहाँ पॉजिटिव। एक एटम का पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज, एक एटम का पॉजिटिव चार्ज, एक एटम का नेगेटिव चार्ज, एक एटम का पॉजिटिव चार्ज, यानी कि मान लो 10 एटम इधर है तो 10 नेगेटिव चार्ज इधर, 10 पॉजिटिव चार्ज इधर, यानी कि टोटल डाइपोल कितना होगा 10 होगा, 10 एटॉमिक डाइपोल इधर। ओके, गॉट माय पॉइंट? क्लियर? काम को आप करिए जल्दी अगर क्लियर हुआ तो ये क्लियर। सो इफ देयर इज इलेक्ट्रिक फील्ड p net of the dipole will be non zero। कैसे? यहां से क्लियर हो गया। क्लियर? लिखो आगे कराता हूं। So now we'll study the polarization of dielectric and that is made up by polar molecule. Clear? So polar molecule. So if this is a dielectric, clear? This is a dielectric and this is made up by polar molecule. तो होगा क्या बाबू? E is equal to 0, so p net will be also 0। क्यों? क्योंकि they have dipole moment but their distribution is random ना। The distribution is random, so p net becomes 0 because distribution is random and this distribution means alignment of dipole is random due to thermal energy। Now keep this, put this dipole in an external electric field, so this is dipole dielectric and is non-zero, and let us say this is the direction of electric field, this is the direction of electric field। तो इनिशियल डाइपोल ऐसा। क्लियर? मतलब क्या सारे मॉलिक्यूल के पास क्या p अपना अलग अलग है ना, ईच एंड एवरी मॉलिक्यूल हैव सम p ना, सबका अपना अपना p है। क्लियर? नाउ इफ देयर इज अ डाइपोल ऐसा कुछ रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन है, क्लियर? मींस दिस वन है here when dipole is here means there is no electric field, then the dipole have only one energy and that is the thermal energy na। Now you are putting this dipole in the external electric field, then this dipole will have two energy। पहला thermal energy
and other that is the potential energy which is u is equal to minus of p dot e. This p is the dipole moment of atom na, and this is the external electric field. So there are two energies, thermal energy and potential energy. और thermal energy क्या है? The thermal energy will increase the randomness ना, ये randomness को increase करेगा, fluctuation को increase करेगा. But this potential energy will always try to align the dipole in the direction of electric field. तो हमेशा ये क्या करेगा? ये इलेक्ट्रिक हमेशा कि डाइपोल किधर हो? इधर हो. डाइपोल किधर हो? इधर हो. तो डाइपोल को किधर करेगा ये? हमेशा क्या करेगा? डाइपोल किधर हो? इधर हो. आ रही है बात समझ की नहीं? बोलो. कोई दिक्कत? अब फिर वही दो पार्ट में इसको डिवाइड कर दो तो बचेगा क्या? ये क्या होगा? सारा कैंसिल हो जाएगा, फिर बचेगा क्या? खाली चार्ज इलेक्ट्रॉन होगा सरफेस ना, इसका इक्विवेलेंट फिगर इधर बन जाएगा. इसका मतलब क्या है? इक्वल एंड अपोजिट चार्ज kept at a finite separation, so they are forming dipole, so P net will be non-zero. क्लियर? सो जल्दी लिखो. अब कंक्लूड कर देता हूं मैं, आगे फिर पढ़े हैं. डाइलेक्ट्रिक made up by non-polar and made up by polar. ये आवाज आ रहा है किसी का? माइक म्यूट करो. माइक म्यूट करो, किसी की आवाज आ रही है इधर. नॉन पोलर मॉलिक्यूल, पोलर मॉलिक्यूल. when P is 0 then P net will be 0. when is non-zero P net will be non-zero. लेकिन इसका रूल क्या है? पहले क्या होगा? पहले क्या होगा बाबू? स्ट्रेचिंग होगा. क्लियर? माने कि पहले फर्स्ट क्या होगा? डाइपोल फॉर्मेशन and then alignment and then alignment. यही है ना प्रोसीजर. पहले डाइपोल फॉर्म ड्यू टू स्ट्रेचिंग एंड देन अलाइनमेंट. इसका प्रोसीजर ये है. नॉन पोलर. पोलर का क्या है बाबू? इफ E is equal to 0 then P net will be 0. क्लियर? E is equal to non-zero P net will be non-zero. प्रोसीजर क्या है? डाइपोल पहले से ही है. डाइपोल क्या है? पहले से ही. डाइपोल एग्जिस्टेड ऑलरेडी. हाँ, डाइपोल क्या है? पहले से ही है. वो क्या है? ओनली अलाइनमेंट ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड. इसमें क्या है? डाइपोल एटम के पास पहले से ही है, खाली एक अलाइनमेंट हो रहा है. क्लियर? इसमें क्या है बाबू? एटम के पास डाइपोल है ही नहीं. फर्स्ट यू आर क्रिएटिंग द डाइपोल मोमेंट इन द एटम ड्यू टू by stretching, and then your electric field is again aligning the dipole in the direction of electric field. क्लियर? तब यहाँ पर P net नॉन जीरो होता है जब इलेक्ट्रिक नॉन जीरो होता है. और यहाँ क्या? पहले से ही डाइपोल है. पहले से ही डाइपोल है, खाली इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगा? उसको अलाइन करेगा. यहाँ क्या है कि पहले इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगा? पहले डाइपोल बनाएगा एटम में और फिर उसको अलाइन करेगा. क्लियर? सो द प्रोसीजर इज डिफरेंट फॉर नॉन पोलर एंड फॉर पोलर. अलग अलग प्रोसीजर होता है. क्लियर? एंड पोलराइजेशन यानी कि डाइपोल मोमेंट ऑफ द डाइलेक्ट्रिक विल डिपेंड अपॉन टू फैक्टर. वन, thermal energy of the dipole, and other also electric field. Clear? Electric field. Thermal energy will oppose and electric field will try to align the dipole in the direction of electric field, yani try to increase the dipole moment of the dielectric. Clear? Now we'll introduce the term called the, yani topic ही था बाबू dielectric and its polarization. This is our topic. सो डाइलेक्ट्रिक मैंने बता दिया. तो अभी आगे भी और पढ़ाऊंगा. डाइलेक्ट्रिक सारा वेरियस टाइप, आइसोट्रोपिक, एनिसोट्रोपिक, होमोजेनियस, इनहोमोजेनियस. सिलेबस में नहीं है लेकिन थोड़ा बहुत बता दूंगा. ठीक है? आगे जाओ कॉलेज में तो बहुत पढ़ना होता है. सो डाइलेक्ट्रिक बता दिया मैंने. अब पोलराइजेशन टर्म को डिफाइन करना. व्हाट डू यू मीन एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ पोलराइजेशन. और पेपर में आ गया कि एक्सप्लेन पोलराइजेशन. ये सारा चीज तो पोलराइजेशन ये, लेकिन एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या होगा पोलराइजेशन का वो बताऊंगा मैं. ये लिख लिया सबने? क्लियर? ये लिख लिया सबने ना? क्लियर? बोर्ड दिख रहा सबको?
बोलो। सो नाउ है ना, अब ये बाइंड अप करते हैं यार, अगली क्लास में कंटिन्यू करेंगे, ज्यादा टाइम हो गया, ठीक है। सो क्वेश्चन पूछना है एक। बोलो। सो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के पास थर्मल एनर्जी नहीं होती और पोलर मॉलिक्यूल्स के पास पहले से थर्मल एनर्जी होती है। सबके पास थर्मल एनर्जी होती है, सबके पास, पोलर और नॉन पोलर सबके पास। सर तो फिर क्यों पोलर मॉलिक्यूल्स अपने थर्मल एनर्जी की वजह से उनका कॉन्फ़िगरेशन कुछ अलग रहता है और नॉन पोलर का अलग रहता है? कहाँ जब E = 0 रहता है तब डाइलेक्ट्रिक्स। आई गॉट योर क्वेश्चन, मैं बता देता हूँ। आई गॉट, इट्स ए गुड क्वेश्चन, मैं बताता हूँ। देखो कहने का मतलब ये, दैट्स गुड। होगा क्या बाबू, देखो दिस इज यू डाइलेक्ट्रिक and that is made up by non-polar molecule, and this is your dielectric and that is made up by polar molecule. So due to thermal energy alignment will be different. मैं क्वेश्चन पे आता हूँ, पहले एक बार बता देता हूँ। This is the alignment is different or random due to thermal energy, इधर ओके। Now if this molecule is this molecule made of non-polar, so मैंने बोला था ऐसा फिगर बनाया था। स्फीयर बनाओगे, स्फीयर। श्रुति का क्वेश्चन ये कि इसमें रैंडमनेस है, यानी इधर पॉजिटिव चार्ज कभी इधर पॉजिटिव चार्ज कभी इधर नेगेटिव चार्ज कभी इधर। रैंडमनेस इज you can see or you can feel randomness over there, but here श्रुति का क्वेश्चन है कि यहाँ क्या है, रैंडमनेस तो है ही नहीं, हमेशा पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज ऊपर नीचे बनाया, यानी कि यहाँ क्या है, रैंडमनेस नहीं है। दिस इज अ क्वेश्चन है, यहाँ रैंडमनेस नहीं है, यहाँ रैंडमनेस है। दिस इज अ क्वेश्चन ना। यस सर। हाँ, यहाँ भी थर्मल एनर्जी है, यहाँ भी थर्मल एनर्जी है। So tell me, this is a duster and I am rotating the, I am changing the configuration। ये डस्टर है, फिर ऐसा कर दिया। So you can feel it ना, you can feel the change। पहले ऐसा था, बाद में क्या था, ऐसे था। You can feel the change। Now ये there is a sphere, there is a spherical ball, there is a पेज देना है, एक पेज दो। There is a spherical ball, there is a spherical ball। अब मैं इसको रोटेट करूं, can you feel this? Is there any change in the configuration? इसको स्फीयर को मैं रोटेट करूंगा, कोई चेंज आएंगे इसमें? Can you feel this? But you can feel because the shape is different। ऐसे करने से कुछ और है, ऐसे करने से कुछ और, ऐसे करने से कुछ और, इसमें फील हो रहा है। अब now think about the polar molecule and non-polar molecule। This is your polar molecule। पोलर मॉलिक्यूल में क्या होता है बाबू कि एक तरफ इलेक्ट्रॉन का पॉपुलेशन क्या होता है, ज्यादा होता है, एक तरफ क्या होता है, कम होता है, यानी कि पहले से ही इसका शेप ऐसा है। तो ऐसे रखोगे तो क्या होगा, अलग फील हो जाएगा कि ऐसा है, ऐसे रखोगे तो क्या होगा, फील हो जाएगा कि ऐसा है, ऐसे रखोगे तो क्या होगा, फील हो जाएगा कि ऐसा है। बट फॉर नॉन पोलर मॉलिक्यूल इसका शेप क्या है बाबू, सिमेट्रिकल है ना, हर जगह इलेक्ट्रॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है और हर जगह प्रोटॉन। तो इसको रोटेट कर दो, अब रोटेट भी करोगे तो क्या होगा, शेप तो वही रहेगा ना यार। मींस देयर इज अ रैंडमनेस ओवर हियर बट shape of the atom is symmetrical, स्फीयर की तरह है। तो रोटेट कर दो ऐसे ऐसे ऐसे, you can't feel the change। ये स्फीयर है, लेकिन अगर ये है नॉन पोलर मॉलिक्यूल, इसको पोलर मॉलिक्यूल ऐसे करोगे तो चेंज हो जाएगा। रैंडमनेस इज स्टिल देयर बट यू कांट फील बिकॉज़ शेप इज सिमेट्रिकल, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज सिमेट्रिकल। गॉट माय पॉइंट? यस सर। सो ये सब क्वेश्चन पूछो बेशर्मो और पढ़ो घर पे, ठीक है। बाइंड अप करें,
पढ़ना Yes, चाहते हैं sir. सब पढ़। Still is there any question? और किसी को क्वेश्चन है No, कुछ? sir. So in the next class we will do some mathematics on this and we will define this term. This is a very important term, polarization. Clear? Polarization is a very important term and we will define tomorrow and we will perform some mathematics over here. Clear? So कल मिलते हैं. Bye.